So hello friends, welcome back to your own channel Students Corner. So आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिलना मैथमेटिक्स चैप्टर 9 दैट इज मैट्रिसेस सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स। तो ये वो मैट्रिक्स नहीं है जो आप लोग बोलते रहते हो कि यूट्यूब का मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है, एक वीडियो चल गया तो बाहर अपने आने वाला वीडियो वायरल होने के लिए मैट्रिक्स सही होना चाहिए। नहीं, ये वो मैट्रिक्स है जो आप बोलते हो सिस्टम करके, ये वो मैट्रिक्स है। आप ऐसे सिमिलर बोल सकते हो कि क्लास 10 में कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए एक डीडीए में प्रिंटिंग आता है डबल डायमेंशनल एरे में मैट्रिसेस का, तो ये उससे सिमिलर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दैट इज रो एंड कॉलम प्रोडक्ट मींस नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो। Number of row is m and number of column is n. This is just a variable but commonly it is denoted by m into n. And row is this means horizontal lines are row but vertical lines are columns. So row into column आप लोगों का काम आएगा कंप्यूटर में भी जब आप लोग पढ़ोगे डीडीए फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स। सो कंप्यूटर में भी पहले रो इनटू कॉलम ही होता है, पहला जो लूप होता है रो का, तो दूसरा लूप होता है वो कॉलम का होता है। इसमें भी यही है, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। नाउ अगर आप लोग इसी में सॉल्व कर रहे हो, जो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इन मैट्रिसेस दैट आर बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो जो ए का m इंटू n है और b का जो n इंटू p है, मतलब a का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है रो इंटू कॉलम और b का जो रो इंटू कॉलम है वो c के बराबर कब आएगा। c है आई रिटन है m इंटू n एंड n इंटू p। सो इफ m and p are coming equal, means this m and this m are equal and this p and this p are equal, then the solution of this is possible. एंड ये मेजरली काम आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। आप लोग समझ तो जाओगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि पॉसिबल है या नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन में इसका ज्यादा रोल आता है। सो अगर आपको फाइंड करना होगा कि बी का रो एंड कॉलम क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर क्या है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो। m इंटू n इंटू p इज इक्वल्स टू m इंटू p। And to find the elements in a matrix, you have to multiply row into column, that is m into n. Means see here, there are I've written, see this part, I've written here 3 into 2 means 3 to the 6. So here there are 6 elements here. I've written 3 into 3 means there are 9 elements. Means row into column, row into column. So row into column this. Then types of matrices. There are several other types of matrices like row matrices, column matrices, null matrices, and many things. Square matrices and rectangular matrices, everything. So basically, those are not need to be taught in detail because many of you commonly know. But I am giving a brief. Row means this matrices in which m is greater than 1 but n is only 1, means m, like see here it is a b and c, means m into n, that is three into 1. Hey friends, you can name it like this is column 1, column 2, column 3 and row 1. So you can see that row is 1 but column is 3. So this is a row matrix. But if you can see that it's form of row and if it's form of column means vertical height is more. So 1, 2, 3, A, B, C and 1. Here you can see that number of columns is, number of row is more than the column. So it is a column matrix.
and square is simple. This is square and this is rectangle. This is also rectangle. So I hope you understand. So let's start with the main thing which are used in the exercises. So null matrix, the symbol is O, not it 0, it is O. Means every element of that matrices is 0. And null also means 0. So it is 0. Diagonal means from in a square or a rectangle, what is diagonal? From one end to the opposite other end. This type. Not we are going this type. We are going just from this type. This diagonal. So see, in diagonal matrix only the diagonal elements are other than 0. They can be 0 also, but they are basically other than 0. And the rest of are 0. Means only the diagonal elements are other than 0 and the rest elements are 0. But diagonal can also be a 0. But these all 0 cannot be any number elements. I know this is a bit confusing. I am explaining it again. Like see 1, 2 and 3. So this is a diagonal, forming a diagonal from one end to another end. So this is 1, 2 and 3. This is a diagonal matrix and others are 0. The other have to be 0. They cannot be 1, 2, 3 or another numeric form from 1 to 9. But this can also be 0. So you can say that diagonal matrix can also be a null matrix, but null matrix cannot be a diagonal matrix. मतलब जो diagonal matrix है वो सब एलिमेंट 0 हो गया तो null कहलाएगा, पर null तो सब 0 होता है तो diagonal के अंदर नहीं आएगा. नेक्स्ट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मीन्स यूनिट क्या होता है? सिंगल यूनिट. जो लोग पढ़े हो क्लास 1, 2 में कि यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस. सो यूनिट क्या होता है? 1. So the symbol is I and only the diagonal are 1, rest all are 0. Here this has to be 1 only, not other than 1 and not 0 also. Only 1 and only 1. The rest all are 0. This has to be 1 only. Next is transpose matrix. Means the row becomes column and column becomes row. Here see, this is column 1, column 2 and column is AB. So it becomes row. Row 1, row 2. And column 2, column 2, column 1, column 2 becomes row 1 and row 2. Means that row becomes column and column becomes row. So see here also, ABC is this way, ABC is this way, DEF this way, DEF this way. Just you have to reverse the order. आप लोग याद ऐसे रख सकते हो जैसे मैंने याद रखा था. ये ABCD, ABCD, ABCDEF, ABCDEF. मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो और जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दो. इससे आप लोग फाइंड कर सकते हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस. आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो आप लोग सॉल्व करोगे मैट्रिसेस में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं हम आपको. तो सैंपल में हम लोग ए और बी को मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस. तो पहले हमको एडिशन करना होगा. क्या सिंपल है, रो 1 कॉलम 1 को रो 1 कॉलम 2 से एंड कॉलम 2 रो 1 को कॉलम 2 रो 1 से. सेम हियर रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2. सो सेम वही है एपी बी क्यू सी आर डी एस सी आर डी एस. सब्ट्रैक्शन उसी तरह है, जो जिस तरह है जो सेम रो सेम कॉलम से मैच करेगा सेम कॉलम सेम रो से सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड हम लोग कर देंगे, पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है. अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो सिर्फ हम लोग जो वैल्यू जो हम लोग का है अदर देन 0, इफ 0 है वो पूरा 0 ही हो जाएगा एट द एंड. बट इफ अदर देन 0 दैट इज फ्रॉम 1 to 9 then you have to simply multiply a b c d or p q r s with the number that is x. So it is called scalar multiplication. Now main problem or main not problem, you have to be positive for solving. Main focus you have to give here, that is multiplication of matrices, means a b two matrices. Here the order have to be same, not whole order
this type of order, like m into n, n to p is equal to m into p, to check it. And I will obviously solve this type of questions in the exercises for making you clear, because I myself was also confused while I am solving in class 10. So I'm telling here, but you have to solve it in a copy also. I hope that you have taken a copy and pen and solving, not just watching and mugging it up. So आप लोग इसको करते करते आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा ये, फिर हम बता दे रहे हैं, पर जैसे आप लोग करोगे वो आपको अच्छा से क्लियर होते जाएगा. मेरा बताने से नहीं होने वाला अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. A into P, this into this, added over B into R, same. A into Q added over B into S, C into Q added over D into R, C into Q and added over D over S. मीन्स आपको इसको इससे करना है और अगले वालों को नीचे से करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर अगला नीचे से करना है, फिर इसको ऊपर से अगला नीचे से, फिर इसको ऊपर से और अगला नीचे से करना है. ये प्रोग्राम हो गया सॉरी इसके लिए, पर समझ में आपको आ गया होगा. Let's start solving exercise 9A, question number 1E. Friends, question number 1A to D are homework and 2 to 4 are also homework. Friends, question number 2 is very important, but this type of questions are not asked in the board examinations, but it is necessary for you to make your understanding a bit more clear. But if you are having any doubt, you tell me in the Telegram channel. I will solve a video of it, and if you don't understand, then I will call you. So let's start solving this. A plus B means adding these two. Friends, this was one of the most favorite chapter of mine, and this chapter has no chance of making it wrong, because it does not have any formulas to do such mistakes. In board examinations, this chapter holds 4 to 8 marks. In MCQ also, in section A and section B also. Add this to this. This is just a simple mathematics, addition and subtraction and multiplication problems are asked in this chapter. So no mistake. If you are doing any mistake, then try to avoid these mistakes. 4 plus minus 2 means 4 minus 2, that is 2. 2 plus 1, that is 3. 7 plus 3, that is 10, and minus 2 minus 4 is minus 6. And friends, you may do a mistake here. You directly go and search for this answer, but you have to read the question very well. It is said that the additive inverse of A plus B means additive inverse is what? Just reverse the signs of each number. So additive inverse of this will be, right, additive inverse is equals to, just reverse the sign, that is minus 2, 3, 10 and minus 6, that is minus 2, minus 10, minus 3 and positive 6. What do you mean by additive inverse? Additive inverse को मेन मतलब होता है कि ऐसा कोई दो नंबर जिसको आप लोग ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा. जब आप इसी को इससे ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा. जैसे कि यहाँ 3 था, ठीक, 3 और माइनस 3 को प्लस करेंगे, यानी 3 माइनस 3 डेट इज 0. तो यही मतलब हुआ एडिटिव इनवर्स का, कि आप लोग उसको खुद से ऐड करोगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए. तो एडिटिव इनवर्स का यही हुआ. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. अगर आपको ये इजी लग रहा होगा, पहले से आप एग्जाम्पल बना चुके होगे, तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करो, and I am sure that you are my student and your answer will be 100% correct. So pause the video. Now I hope you have solved, and now I am solving it. Friends, you have to do nothing here, just you have to see the easiest path.
So no need to solve this whole and do this addition also, which has no need. You just have to find the value of x and y. So go with x and y. Here it is 2, same row and same column. 2 minus x minus 1. X minus 1 is equals to 7. Now simple as that. 2 minus x plus 1 is equals to 7. And this will go minus x is equals to 7 minus 3 minus x is equals to 4 and x is equals to minus 4. Now to solve for y, simple like this. Now if you haven't solved, then you can solve from here. Possibly everybody will solve. Now I'm continuing. Y minus 1 minus bracket minus 3 is equals to 2. So y minus 1 plus 3 is equals to 2. This will be y plus 2 is equals to 2. And now y is equals to 2 minus 2, that is directly equals to 0. So these are your answers. I hope you have solved. Now solve the next part. But friends, 5 part rest are homework. But the answer will be in the बोलो कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप लोग पहले से जुड़ोगे मेरे साथ तो लोग को पता होगा कि कहाँ पे है आंसर्स. अगर नए स्टूडेंट है तो बता दिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होगा. क्वेश्चन नंबर 6. Here transpose of matrix. I have already told that how to find the transpose of matrix. Please solve it. Please find the matrices transpose. Now I am solving. Row becomes column and column becomes row. So write your answer and then see. 5 minus 3. So it will become a row and minus 2 goes above and 4. In a square matrix of order 2 into 2, just these two are reversed. Means this goes here and this goes here. बाकी कुछ चेंज नहीं करना है. Now you have to add this and this. Here T means transpose matrix. So here everything is very clear. So pause the video and solve and then come. Because just by seeing you gains nothing. So solve it and then check the procedure. Please solve step by step. If you don't solve it, then you lose marks. Step also has marks. So M, that is 5 minus 3 minus 2, 4 plus 5 minus 2 minus 3, 4. Now just simply add 5 plus 5, that is 10, minus 3 minus 2, that is minus 5, minus 2 minus 3, that is minus 5, and 4 is 16. So just the double of everything. Now this is your final answer. Now comes to matrix transposed minus simple matrix, that is M. So 5 minus 2 minus 3 and 4, and subtracting is 5 minus 3 minus 2 and 4. So let's subtract it. 5 minus 5, 0. Minus 2, here C. You may do mistake and just solve minus 2 minus 3, but before it in between there is a minus sign over here. So in simple rough column you can do minus 2 minus 3, but this is for beginners. For pro persons, just do this. Minus 2 minus plus, so minus 2 and plus 3 should become directly plus 1. Minus 3 and plus 2 means minus 1, and this will be 0. So your this answer is this and this answer is this. यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, माफ कर देंगे. ये 8 होगा. 4 4 8 को डबल कर 16 कर दिए. Please you don't do mistake, but check the answer after solving it. Part 1 is homework. Now let's solve this. A minus x is equal to b plus c. Now before putting the values of a, b and c, you have to find x. Just rearrange it. Keep minus x
but try to keep x one side and the rest to the other side. So if we keep minus x here is equals to b plus c and a go minus a. Now change the sign, keep it, make it plus. So multiply by minus 1. This is the sign reverses. It will become positive. It's negative, become positive, and this becomes negative. Minus b minus c. So now put the values here. A is 2 minus 3 minus 0 2 minus minus 1 and 4. 2 minus 0 2 and plus 1, that is 3. Minus 3 minus 2, that is minus 5, and minus 5 minus 4, that is minus 9. This is your answer of x. And 3 are homework, but the answer will be in the description box. I will solve 8 part 2. Next question क्या है? a minus x equals to b. ये तो पूरा सेम एंड इजीएस्ट क्वेश्चन है. जस्ट मैंने अभी को सॉल्व किया था. पहले तो सॉल्व कीजिए तब बनाएंगे हम बनाएंगे नहीं, पहले सॉल्व कीजिए तब. रोने क्यों लगे आप लोग? इमोशनल मत होइए, बना दे रहे हैं हम, चिंता मत कीजिए. लोग सच्ची में सोचे थे कि नहीं बनाएंगे, प्लीज अपना नाम लिख दीजिए कमेंट में. तो ए बी इधर लाओ, एक्स उधर भेज दो. माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. सो ए इज minus 1 0 2 4 and minus b is 3 minus 3 minus 2 and 0. फ्री हैंड में ना यही ब्रैकेट ही सही नहीं बनता है, कभी ऐसे गोल बन जाता है. ऐसे करने के चक्कर में बहुत झंझट होता है इसमें. और एक बार कंफ्यूज में हुआ था जब सॉल्व कर रहे थे बोर्ड में पेपर अपना, तब कहाँ ये ब्रैकेट था, कहाँ ये ब्रैकेट था. So solve it. Please put your this bracket as square bracket only because you get confused. Minus 1 minus 3, that is minus 4. 0 minus plus, that is plus 3. 2 minus plus 2, that is 4. And 4 minus 0, that is 4 only. So your answer is this. Another mistake. This is minus here, so minus here, so minus here. Please check the answer twice. अब आप लोग कमेंट करो कि भैया खुद आपसे गलती हो रहा है, हमें गलती करने मना कर रहे हो. अरे मेरा बोर्ड पेपर पार हो गया, तुम लोग का मेन एग्जाम आने वाला है. अभी मेरी गलती नहीं हुआ, अभी गलती हो रहा, पता नहीं क्या है. बस अच्छा है कि मेरी गलती नहीं हुआ. So now friends, let's start solving exercise 9b. Question number 1b. Friends, question number 1a is homework and D and E are also homework, but the answer will be in the description box. So solving B. Here the value of A is given and A minus B is given. You can directly do this. Some students do this, like they put the value of A here and B is here. Send A to there and solve minus B is equals to this minus value of A. अरे बेवकूफ, वैसे नहीं होगा. सुनो, मार्क्स चाहिए जैसे बोल रहे वैसे बनाओ, समझा? A माइनस B का वैल्यू तुम लोग इज इक्वल्स टू x लेट कर लो. अब x वैल्यू इज इक्वल्स टू A माइनस B का वैल्यू. तो A माइनस B का वैल्यू क्या है? दिस. तो 6 4 minus 3 and 0 and x क्या का है जैसे a माइनस बी एंड ए का दिया हुआ है. सो वेट, यहाँ पे हम लोग कर ही लिए. b को फाइंड करना तो b को हम लोग अलोन कर देंगे अकेला एकदम, ठीक है. सो माइनस b इज इक्वल्स टू x माइनस a. अब हमें चाहिए पॉजिटिव a का वैल्यू, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से. ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस x and plus a. So this. So now this is the ultimate thing, you have to find it out. So b is equals to a value minus 3 minus 7 0 and minus 8. Sorry, हवा मोड़ रहा, माफ करना, तुम लोग सही से करना, तुम्हारे पास प्रॉपर एन होगा, सही से करना, हवा मत उड़ाना, तो मार्क्स से हवा मोड़ते रहेगा. माइनस x.
So x is a minus b, that is this. So 6, 4, sorry, minus 3 and 0. Now simply solve this to get your 1 marks. MCQ by कितना मिलेगा? So minus 3 minus 6, that is minus 9, minus 7 minus 4, that is minus 11, 0 minus 3, that is minus plus 3, so it's 3, and minus 8 minus 0, that is minus 8. So that's option number 4. So friends, in part C, you have to find the value of m and I. I का वैल्यू क्या बोले थे हम पहले जब बता रहे थे इंट्रोडक्शन में कि I is a unit matrix and बुक में दिया क्वेश्चन दिया होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मींस डायगोनल में 1 होगा बाकी इतना बच्चा उस 0 कर दो. So I is equals to unit matrix of order 2 means element 2 into 2 means element 4 होने चाहिए. Order 2 into 2 means row 2 होगा and column 2 होगा. So 1 1 0 0, this is the identity matrix. Keep it in mind. Now solve this. 4 into I. First put I here and do the rest. So m is equals to m plus 4i. अब 4i को उधर भेजोगे, पहले 4 का वैल्यू लिख लो क्या है. So 4i is this. So 4i is 4 0 0 4 means 4 बन जा 4 4 0 4 0 4 बन जा 4. So this is equals to this, that is 8 minus 3 4 minus plus 2. आप लोग पिछले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे पर x हो ज्यादा बेटर है. आप इसमें भी x अप्लाई करके कर सकते हो पर आप नहीं करता. एक मार्क्स चाहिए भाई, कैसे बनाना है वो बस. So here 8 minus 3 4 minus 2 and plus में तो minus हो जाएगा 4 0 0 4. Now simply you have to subtract to get the value of m. So 8 minus 4, that is 4, minus 3 minus 0 is equal to minus 3 only. 4 minus 0, that is 4, and 2 minus 4, that is minus 2. So your option you can go with option number 4. 2 part 2. 2 part 1 is homework. So 2 part 2, first multiply x with this and minus 4 with this, and then I will look forward. X into minus x, that is minus x divided by 2x. So not divided by, below. And now here you just have to multiply with 4, not with minus 2. Here you have to multiply with 4 only, not with minus 4. If you multiply with minus 4, then the sign becomes a positive and then the rest are in the bracket. But if you multiply with 4 only, then here the sign will be minus. 4 into minus 2, that is minus 8, and 4 into y, that is 4y, and 7 by 8. So by नहीं होगा 8. अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो बताओ क्या करोगे? स्क्रीन बड़ा कर लोगे यार, दिक्कत क्या चीज है? यूट्यूब में स्क्रीन बड़ा होता है, चिंता मत करो. So now here it's simple. First find the value of x, that is minus x minus plus 8 is equals to 7. So minus x is equals to 7 minus 8, that is minus x is equals to minus 1 means x is equals to 1. And x पता चल गया तो हो गया 2 into 1, that is 2, minus 4y equals to 8. So now minus 4y is equals to 8 minus 2, that is 6. So y is equals to 6 by minus 4. So y is equals to minus 2.5 as your value of y. Equals to minus 8 minus 8 minus 6. एक कट गया तो बचा पॉजिटिव 2.5.
अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया खुद से, देखिए वीडियो देखा होगा, सॉल्व के लिए पनिशमेंट है क्या? तो अगर नंबर 3 खुद सॉल्व करोगे हम लोग कैलकुलेट के लिए, और जो वीडियो पहले से देख रहे होंगे लोग पता है कि हम सॉल्व करने पहले बोले होंगे, और हम लोग को ये पता है कि आंसर कहाँ पे होगा। अब आप पहले सॉल्व नहीं कर रहे थे, आंसर नहीं पता मिलेगा आप लोग, क्योंकि आप लोग पहले से वीडियो नहीं देख रहे थे और इसे आप सॉल्व नहीं किए खुद से। सो दैट्स योर पनिशमेंट फॉर नॉट वाचिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड हैव स्किप द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑन साइड फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। रो मत यार, 3 का सॉल्यूशन ना कमेंट में दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रो मत बस। नाउ नंबर 4, you have to find a, so 3 यहाँ रखो, इसको उठा के यहाँ लिख दो, तो 3a is equals to -2 1 -2 -3, इसको उठा के इधर फेंक देना था, फेंक दोगे तो प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, so 4 4 -2 0. Now solve this. 3a, remember it is 3a not a, you have to keep 3 also here. At the end you have to divide each by 3, not directly you can divide by 3, not directly, mind my words. So -2 -4, that is -6, -2 plus 2, that is 0, 1 -4, that is -3, and -3 -0, that is -3. Here your luck is very good, so just divide by 3 each thing. So -6 by 3, that is -2, -3 by 3, that is -1, -1 and 0. So this is the value of a, but sometimes as we can solve in the next questions, in the next exercise, that the values after dividing is not a whole number, it may be a fraction also, or you can add in decimal, but here your luck is good and the solutions are in whole number. आपने सॉल्व नहीं किया नंबर 4 अपने से पहले, फिर हम होमवर्क देंगे आप लोग को, देखिए 4 है ना, 5 और 6 पूरा होमवर्क, समझे? डरो मत यार, आंसर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और समझ नहीं आए तो बोलना, कॉल कर देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे, बस तुम लोग टॉप करना इस बार। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सी प्लस बी का वैल्यू नल मैट्रिक्स यानी 0 दिया हुआ है, मतलब आपको सी फाइंड करना है, बी दिया हुआ है, तो बी को उधर भेजोगे, नल मैट्रिक्स साथ सब्ट्रैक्ट चल जाएगा और सॉल्व भी इजिली हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, पर आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो डोंट वरी। बहुत लोग ये बोल रहे हो भैया इजी सॉल्व कर दे रहे हैं, हार्ड सॉल्व कर दे रहे हैं, अरे भाई हार्ड सॉल्व कर रहे हैं, देख लो, बोलना नहीं पहले। तो 2a plus 3t, उससे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या था, रो कॉलम कॉलम रो, -3 और -9 सेम रहेगा, इसको उधर उसको उधर भेज दो, सो ये 0 हो गया, 6 हो गया, खत्म। सो नाउ 2 into a, so that is 2 into a, डायरेक्ट कर सकते हो, पर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको नहीं टीचर को। 3 into transpose matrix of A, that is this and this. Now solve this. -6 0 12 18 plus -9 18 -27 and 0. Now solve this. You will get -15 12 18 and -9. Let me check. Take here. This minus to this will be -45. Now check the answer. You check it twice. I will check the answer.
It's absolutely correct. Now, second part. 2 into 80, that is transposed of A, that is minus 3, 0, 6 and minus 9. Now minus 3A, 3 into A, that is minus 3, minus 9, 0 and 6. So now solve this. This will be minus 6, 2, 12 and minus 18. देखो यही गलती होता है सबसे, ठीक करना इसको h देना है, कर्व नहीं करना. This will be minus 9, 18, 3 and minus 27. Now solve this, you will get minus 6 plus 9, plus 9. So plus 3, 12 minus 3, that is 9. 2 minus 18, that is minus 16 and minus 18 plus 27. It will be plus 9. और फ्रेंड्स यहाँ पे गलती है, सही कर लेना आप लोग इसको. यहाँ पे आ जाएगा minus 18. So now this is the correct answer. Now I will solve part 3 and part 4. तो बोलोगे भैया ये सॉल्व करते हैं, हाथ सॉल्व करते नहीं है. 7 part 3 and 7 part 4. 7 part 3 में क्या है? Half of matrix A and minus divided by 1/3 of matrix transposed A. So यहाँ देखो half of A, so it will be, हाफ कर रहे हैं, मजाक कर ऐसा नहीं होता. So 1/2 of A लिखो ना, पहले सिंपल करो, वैल्यू लिखो minus 3, 0, 6, 9 minus 1/3 of minus 3, 6, 0, minus 9. राइटिंग में जाना, बड़ा कर लेना, ध्यान दे रहा होगा तो. So this will be minus 3/2. मैट्रिक्स का बड़ा करो, इसको हल्का बड़ा करना होगा. क्या? मैट्रिक्स को. अपना डर्टी माइंड मत लगाओ, डोंट अप्लाई डर्टी माइंड. Divide by 6/2, that is exactly 3, 0 and 9/2. So बड़ा सा बंद, matrices minus 1/3 of this, so it will be minus 1, 2, 0, minus 3. So now बड़ा सा खोलना है मैट्रिक्स को, समझे, सॉल्व करना है इसको. So minus 3 एलसीएम में 2 आएगा, minus 3 minus 2, that is minus 5/2. 3 है, माइनस प्लस हो जाएगा, minus 3 है, सॉल्व कर दे, रो मत. minus 3/2 एलसीएम आएगा, minus plus 2, so it will be minus 1/2. minus 1/2, सेम फॉर दिस 3, ये तो सिंपल है 3 होगा, सिंपल है 2 होगा, सॉरी minus 2 होगा. सॉल्व कर दे रहे हैं, 9, 2 एलसीएम, 2 into minus 3, that is minus 6, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 15/2, 6/2 है, तो क्या बचेगा, minus 3/2. मैं लिख दूं यहाँ पे minus 3/2. दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 3. Now transposed of A, that is this, minus 3, 6, 0, minus 9 minus 1/3 of A, that is
-3, 6 -9 and 0. So -3 writing it here. आप लोग बोलोगे भाई सेम लिख दिए, पर सेम नहीं है बच्चे लोग। रुको रुको रुको, यहाँ सॉल्व करेंगे। माइनस जाएगा अंदर, ये होगा -1, ये होगा 0, ये होगा 2, सॉरी 0, एंड ये होगा -3। ये 0 है यार, डरो नहीं। जो बचा उसको लिखो। -3 + 1 that is -2, 0 -2 -2, 6 बोले, कुछ और नहीं बोले। -9 -3। -6. This is your answer. Now I will solve number 8 part 2 and 7 तो सॉल्व कर दिए। 8 part 1 होमवर्क है। 8 part 2 भी होमवर्क है, 3 सॉल्व कर देंगे हम। 9 भी होमवर्क है, बट आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ सॉल्विंग 8 part 3। लोग बोलते हैं ना भैया इजी सॉल्व करते हो, अब बताओ ये इजी है? बहुत इजी है यार, देखो शांति से। इतना इजी इतना इजी इतना इजी कि तुम लोग के लिए इतना हार्ड बोलो नहीं, जाकर यार इजी टॉप रहो तुम लोग। सो पहले क्या करना है, एक्स एक्स है इसको एक साथ एक्स कर दो। एक्स फाइंड करना है, एक्स को अकेला कर दो सिंगल एकदम, और ए और बी मैरिड है एक तरफ कर दो। सो 3a इसको इधर कर दो +2b इक्वल्स टू x माइनस है +2x हो गया 3x। तो 3x इज इक्वल्स टू 3a + 2b। 3x है, याद रखना 3x 3 टाइम्स x, ठीक है। 3 into a is 1 1 -2 and 0, and 2 into b that is 2 -1 1 and 1. So 3x, now solve this, it will be 3 3 -6 and 0. This will be 4 -2 2 and 2। अरे 4 -2 नहीं है, 4 और -2 सेपरेट है। So 3x is equals to, solve this, 3 + 4 that is 7, 3 - 2 that is 1, -6 + 2 is -4, and 0 + 2 is 2। तो ये आया है, बोलते ना इजी आने वाला आप लोग का आगे में। सो x इज इक्वल्स टू 7/3, 1/3। छोड़ा दिखाई देगा आप लोग को, बहुत लोग को यूट्यूब में स्क्रीन बड़ा करने आता है तो है नहीं, बोलोगे भैया बताने सही से, आप यहाँ पर आधे देख लो। सो x इज इक्वल्स टू, जो है ना उसी को लिख लो पहले, और बाद में /3 लगा दो। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। तो ये आपका आंसर। नाउ सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज अप विथ एक्सरसाइज 9C। I'm solving 1D and say which all will be homework 1B and E. Okay, let's solve number 1 part D. Here you are given with A and B and you are asked that which of the following is not possible, क्या possible नहीं है। So A square is called possible है, simply A into A मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो देखो हम क्या बताते हैं आप लोग को, m into n n into p is equal to m into p वाला। सो m into n into p is equals to m into p, जो आएगा यहाँ पे मान लो c आएगा यहाँ पे, ठीक उसका, ठीक है।
यहाँ क्या है, 2 into 2 का है। एंड ये देख लो, एक कॉलम है एंड एक दो रो है, तो रो एंड कॉलम होता है 2 into कॉलम 1। तो क्या है, m का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 एंड p का वैल्यू क्या है, 1। तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो 2 भी सही है। 3ba, b आगे फिर a पीछे, मतलब 2 into 1, 2 into 2, m into n, n into p इक्वल्स टू m into p। यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, यहाँ p का वैल्यू 2 आ रहा है। ये तो ठीक है, चलो मान लिए। मेन आपको क्या देखना है कि n का वैल्यू बराबर है, हाँ है। तो ये जो हुआ, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी था, ए बी, ऑप्शन नंबर 2 था ए बी, वो हो सकता है। पर ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू देखिए, दो वैल्यू आ रहा है n का, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, दोनों तो डिफरेंट हो गया। तो जो 1 का डी का ऑप्शन नंबर 3 वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग 4 देख लेंगे, 4 है 15a, सिंपली 15 into a आ ही जाएगा। तो पार्ट 3 जो है बी ए, ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है पर क्वेश्चन बोला है कि जो नहीं है, जो गलत है, तो ये गलत है और ऑप्शन सही है ना। आप लोग बोलोगे भैया ए और सी कहाँ गया, तो देखो बच्चा वाला खेल है, बता दे रहे हैं, सुनो शांति से। बोल रहे ए का ऑर्डर m into 3 है, 1a में ए का ऑर्डर m into 3 है एंड बी का ऑर्डर 3 into 2 है। तो सी का पूछा है ना, सॉरी आर का पूछा है, तो आर का क्या होगा, सो इट्स m into p, कुछ और दिया हुआ है। आर इज 5 into n, आर इज 5 into n। तो देखो जो मेरे था उससे कंपेयर करो। क्या था मेरा, m into n, n into p इज इक्वल्स टू m into p। ये n और ये m छोड़ दो, तुम जो बोल रहे हो वो देखो आंसर से। तो यहाँ पे देखो कि n का वैल्यू तो सेम है दोनों में, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। m का वैल्यू 3 है एंड यहाँ m का वैल्यू 5 है, तो m का वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे, एंड p का वैल्यू n है एंड यहाँ p का वैल्यू 2 है, तो 2 आया 5/2। So we can go with option number 1 का पार्ट 2 मीन्स 1 का ए का पार्ट 2। क्या सब लोग फाइंड कर सकते हो, कैसे किया हम ये बता दे रहे हैं। तो m यहाँ पे भी m यहाँ पे भी, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो m का वैल्यू 5 दिया, उसके वैल्यू m का वैल्यू 5 हो गई, ऑब्वियसली होगा। सिमिलर देखो क्या बोला है, n बोला है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, बचा p, p का वैल्यू यहाँ पे n है, यहाँ p का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू n है, तो n into n इक्वल्स टू 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे नीचे वाले n नहीं देखना है, ऊपर वाले n देखना है, तो 2 आया यहाँ पे सही। अभी से नहीं आया बोलना, कॉल करेंगे समझा देंगे, नंबर दे देंगे भाई साहब, टेलीग्राम पे फैलाओ तो। सॉरी सी, सी दो क्या बोल रहे, सी तो और भी इजी है, आंख बंद करके तुम कर सकते हो, सिर्फ सुनो और सॉल्व करो। ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 5। अरे भाई जब बोल दिया कि ऑर्डर 5 है ही, तो सी ए प्लस बी स्क्वायर जो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर सेम ही रहेगा। एक ऑर्डर 5 है, मतलब 5 × 5 का मैट्रिक्स होगा 5/5 का, तो देखो 5/5 है। हाँ, पार्ट नंबर 2 जो है वो 5/5 है, तो पार्ट 2 इसका आंसर आंख बंद करके लिख सकते हो, 5 × 5। क्या आया, राइटिंग खराब हो गया, रुक जाओ, 75 बोले ना, आंख बंद करके कर सकते हो, ये आएगा नहीं, just to develop your logic and to find the order of matrices that is given। का पूरा
और 3 का 1 and 2 होमवर्क है, पार्ट 3 बता दे रहे हैं तुरंत। सो नाउ सॉल्विंग 3 पार्ट 3 पार्ट 1 and 2 को तुम लोग सॉल्व कर लोगे, वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, तुम लोग से नहीं होगा तो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है उसमें आंसर है पीडीएफ में, ठीक है। तो थ्री क्या है, ए इंटू आई, आई क्या भैया, आई खुद से करना है क्या, अरे नहीं रुको यार समझो, ए क्या है, ए दिया हुआ, आई क्या है, आई तुम बताए थे कि आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होता है देखो उसको, एक वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 2 5 -2 एंड आई क्या होता है यूनिट यानी 1 0 0 1, ऐसे कर सकते हो 1 0 0 1 बात बराबर है, चाहे 1 0 0 1 चाहे 1 0 0 1 है वही बात बराबर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, सुनो कैसे करना है, 0 को 1 से करो तो 0 आएगा, उसका बड़ा बनाओ क्या ब्रैकेट नहीं 0 and 2 into 0 plus 0, now 0 into 0 0, 2 into 1 plus 2, कुछ तो आया सिर्फ 0 आ रहा था, 5 into 1 5 minus 2 into 0 here 0 आ गया, 5 into 0 here 0 आ गया, minus 2 into 1 is -2, अब देखो क्या आता है 0 है 5 है 2 है -2 है, चलो आगे देखो, देखना है जाओ फिर से होमवर्क 5 to 9 का, सॉरी 4 to 9 का झेलो, गुस्सा मत है यार, आंसर दिया टेलीग्राम पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो कमेंट में। अब देखो 10 कैसे सॉल्व करना है, तो पहले खेल है इन वेरिएबल्स का, तो बस सॉल्व करो सिंपल, ए को एक अकेला सिंगल बना दो, तो क्या है बी स्क्वायर है प्लस बी माइनस बी कर दो इज इक्वल्स टू हाफ ए, सिंपल लिख सकते हो आप उसको, a/2 कर सकते हो a/2, पर ऐसे भी सही कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बच्चा बी स्क्वायर माइनस बी है, ठीक है, नीचे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए, हो गया, और सिंपल सॉल्व करो, ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर, देखो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी हो गए थे अपना समय में और आप भी हो गए कि ये कर्व ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट है, so b is 2101 into itself, that is square 2101 minus itself 2101 bond is equals to a, तो हाँ हाँ ये ठीक है, सॉल्व करो, a is equals to 2 times of this, but first is a bracket also, solve this, 2 into 2 that is 4 plus 1 into 0 that is 0, 2 into 2 that is 2, 1 into 1 that is 1, ठीक है, 0 into 0 2 that is 0 plus 1 into 0 that is 0, 0 into 1 0, 1 into 1 1, तो क्या बचा यहाँ लिखो 2 टाइम्स, क्या बचे यहाँ वो लिखो 4031 4031 minus 2101, अब देखो क्या बचा, सॉल्व करो क्या आएगा, तुम खोल सकते हो डायरेक्टली, ये बचने वाला है 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2, 0 0, ना क्या बच्चे देख लो 0, सॉरी 2 4 2 4 and 0 0, this is your answer।
देखो यार सेस देना गलती हो रहा है मेरे से, गलती नहीं यार चलेगा ये समझो, सिर्फ गलती मत निकालो मेरा। Now question number 11 and 12 part 1 and 3 are over. Now see number 12 part 2. आप लोग सोचोगे भैया ये पतलू सा लंबू है, ये मोटा है, ये फिर पतला लंबा कैसे सॉल्व होगा, सही है कि नहीं है? तो सुनो, रूल सुनो। m इंटू एन है, n इंटू पी है, और ये क्या है बोलो बोलो बोलो, m इंटू पी है, ठीक है। ये क्या है, 1 2 एंड 1, रो इंटू कॉलम, एक रो दो कॉलम, मतलब दिखाई दे रहा है 2 इंटू का है। इसमें देख लो एक रो दो कॉलम, देखो n का वैल्यू सेम है m1 है m1, और p क्या है 2 p2, समझ आया, बराबर है ना। ये समझा करो कि हुआ कैसे, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व करो कि बोला क्या है। ऐसे नहीं क्वेश्चन गलत हो सकता, क्वेश्चन गलत हो सकता है पर हमेशा नहीं। अब सुन क्या करना है, सिंपल से तुमको मल्टीप्लाई करना है, जो मेन मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, so x plus y into minus 1, so it will be minus x minus y, then this into this will be 2x minus 8, then this it will be minus 2x minus 2y, now this will be 2x minus 8 माइनस एक्स माइनस वाई आया। अब इसको करना है इससे, तो तुम्हारा प्लस 2x माइनस 8, यहाँ देखो इस दिस तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 8, क्या आया माइनस 7 एंड माइनस 11। अब इसको इक्वल कर, अब इसको इक्वलाइज करो इससे और इसको इक्वलाइज करो इससे, और जो कट दो उसको काट दो, एंड करा तो हम लोग को अल्टीमेटली x एंड y का वैल्यू, सो माइनस x एंड प्लस 2x, सो इट विल बी obviously प्लस x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू, अगर भेजोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव में 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y। ये आप लोग कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई का वैल्यू आप लोग क्लास 9 में पढ़े होगे, इसे सॉल्व करना। चैप्टर नाम याद नहीं आ रहा पर सिर्फ 9 में ही पढ़े हैं। ये कर दिया प्लस एंड माइनस, ये लेफ्ट विथ माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 11, so minus 2y is equals to minus 11 plus 8, so it will be minus 3, cut y is equals to 3 2, वैल्यू आ गया। अब तो कर दो 1 प्लस 3/2, एलसीएम लो, 2 आएगा ऊपर क्या आएगा 2 प्लस 3 आएगा, दैट इज 5/2। 13 part 1 is homework. I will solve number 13 part 2. 13 part 2 and 13 part 2 also has part A and part B. In part A you have to find the order of it, which is very easy. So simple formula guys, m into n into p और m into p, ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है ये 1 1 एंड 2, सो 2 रो है एंड 1 कॉलम है। तो देखो n का वैल्यू 2 आया एंड p का वैल्यू 1 आया, क्या पता चला क्या है इसका ऑर्डर 2 into 1 मींस इसमें ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसका एलिमेंट्स 2 होगा। सो 2 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा a एंड b ले लो, सो पार्ट ए का आंसर हुआ ऑर्डर 2 into 1 एंड फॉर पार्ट बी m is equals to ab। ठीक है, now start solving। 1 2 4 1 into ab is equals to 13 5। now multiply, 1 into a is a plus
4 into B is 4B. 2 into A is 2A and 1 into B is B. Now is equals to 13 by 5. So now solve. So here A plus 4B is equals to 13. A plus 4B is equals to 13. And 2A plus B is equals to 5. ना आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों को एक बार एक लिख के सब सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो. तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से. सो A इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4B. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1. पुट करो इक्वेशन 2 में. 2 इंटू 13 माइनस 4B प्लस B इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, 26 माइनस 8B प्लस B इज इक्वल्स टू 5. 26 minus 7B is equals to 5 minus 7B is equals to 5 plus 26 minus 7B. ये सिर्फ B बचेगा, उसको उठा के उधर कर देंगे 7 को डिवाइड में. ये हो गया 31/7. प्लस में तो यहाँ का माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा आपका -21 and by 7 is equals to -3 and math cut, so 3. So value of B is 3. Put here. So A is equals to 13 minus 4 is 12. So A is 1. So A is 1 and B is 3. Number 15. अब बोलोगे 15. अरे हाँ यार 14 होमवर्क है, समझा करो इतना. अब देखो नंबर 15 बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर वेरी वेरी गिविंग फोकस वाला क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बोल क्या रही है. आपका नॉलेज का नहीं, आपका ट्रांसलेटिव फ्रॉम इंग्लिश टू लॉजिक वाला क्वेश्चन है. ठीक है, आएगा नहीं पर आ सकता है, पर नहीं आएगा. बोले कि भैया क्लियरली बता दो. अरे नहीं आएगा यार, समझ लो. ए और बी दो कोई मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है. ठीक है, और बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और बोला है कि बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं. तो ए क्या है? अब ए बी इज इक्वल्स टू बी है और बी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ए क्या हुआ? तो देखो इसका आंसर पीछे कुछ दिया हुआ है, सो सही नहीं लगा हमको. तो मेरा आंसर सुनो, जो एप्लीकेबल भी है, लॉजिकली दिमाग लगाओ, अप्लाई करो. ए बी जो है वो जीरो नहीं है, तो ए तो जीरो हो सकता है ना. ठीक है, अगर मान लो ए जीरो नहीं है, ए नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ए जो है वो बी का एडिटिव आइडेंटिटी होगा ना. दो ऑप्शन बनता है, या तो नल मैट्रिक्स ए, या तो बोल सकते हो कि ए जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है बी का. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 16. and friends 17 to 19 and 21. 17 to 19 and 21 are homework. I will solve number 16, 20 and there is a surprise at the last. So बने रहे मेरे साथ Pure Students Corner. अब देखो नंबर 16. तो पहले ए बी बोला, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, देन ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो. सिंपल सा. पहले रोको वीडियो, बनाओ 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 बनाओ, फिर ऑन करो और देखो जो बना रहे. तब सही आया तो लाइक ठोक दो, गलत आया तो कमेंट करो कि भैया मेरा आंसर गलत है. जो गलत आंसर उसको कमेंट में लिख देना. ठीक है, सो ए
is this 3004 into AB0C। इसमें आपको मेनली फाइंड करना है ABC का वैल्यू। तो देखो आगे 3004 प्लस ABC0। सो नाउ तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 into A that is 3A plus 000, 3 into B that is 3B plus 0 0 4 into 0 0 4C। तो 0 यार, अच्छा ना, क्या जा रहा है, सॉल्व करने में आसानी होगा, मेरा क्या नहीं, आपका कुछ इक्वल्स टू 3 plus A 0 plus B, फिर देख लिखो ना B यार, ना मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 plus A B 0 and 4 plus C। नाउ सॉल्व। अब सॉल्व करना क्या करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे कंपेयर करते जाना। तो 3A 0 तो कुछ मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू 3 plus A। क्या मतलब यार, 3A है, A इधर भेज दो, माइनस A इज इक्वल्स टू 3 हुआ। सो 2A इज इक्वल्स टू 3 हुआ, तो A का वैल्यू 3/2 आ गया। ये दिखाई नहीं देगा, इसको जूम इन कर लेना, समझे। प्लस सॉरी 3B प्लस 0 है, तो वो हो गया इक्वल्स टू B। रोको, सॉल्व करो, तब आओ इधर। 3B माइनस B इज इक्वल्स टू 0 आया, तो 2B इज इक्वल्स टू 0 आया। B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इधर भेजे तो 0/2 होगा, तो B 0 ही हो जाएगा, समझो। फिर इधर क्या है, 4C है, प्लस में कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 4 plus C है, सिंपल सा वही वाला है, 4C माइनस C इज इक्वल्स टू 4, 3C इज इक्वल्स टू 4 एंड C इज इक्वल्स टू 4/3। फ्रेंड्स ये आंसर, इसको बड़ा कर देना, बड़ा कर देना, बड़ा कर देना। क्या बड़ा करना है, कुछ और नहीं, आंसर बड़ा कर लेना, स्क्रीन बड़ा कर लेना दिखाई देने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकिएस्ट है, जानते भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हो गए नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वो हम आपको दे देंगे एज वी मूव फॉरवर्ड। मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, उसको फोटो खींच के भी अपलोड कर देंगे चैनल पे। सिर्फ टेबल का भी जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ डाल देंगे एज अ शॉर्ट्स और एज अ पोस्ट। आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। पर इस समय आप लोग जानते नहीं होंगे क्या कॉस है, क्या कौन डिग्री का क्या वैल्यू होगा, शायद से 9 में भी था, पर आप लोग को याद नहीं होगा, फिर भी इसलिए हम डाल देंगे। तो इसे देख लीजिएगा, ऐसा एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पढ़ने सब जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए बता दे रहे हैं, वैल्यू आप लोग को हम लिख के दे देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे हम। सो 2 into cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 into 1/2 माइनस 1045 माइनस 1045 को होता है 1 माइनस 2 sin 30 माइनस 2 into 1/2 sin 30 एंड cos 60 सेम होता है, cos 30 एंड sin 30 सेम होता है, सॉरी cos 60 एंड sin 30 सेम होता है एंड sin 60 एंड cos 60 का सॉरी cos 60 एंड sin 30 सेम होता है एंड sin 60 एंड cos 30 सेम होता है वैल्यू, ठीक है। तो वही हो गया इंटू cos 0 तो 0, cos 0 1 होगा और sin 90 1 होगा, ठीक है। sin 90 यानी बता दिया मैं ऐसी वैल्यू आप लोग को। cos 45 1 सॉरी 1/tan 45 sec is sec 1/60 sorry is equal to sec 1/cos 60, this will be 1/sin 30, it will be sin 30 sin 90 that is 1, ये कटा बचा 1 by -1, ये
कटा बचा -1/1। ये तो भाई अपोजिट डायगोनल हो गया -1 आइडेंटिटी का, छोड़ो मतलब नहीं। तो 1/10 दैट इज 1/1, मतलब 1 ही आया अल्टीमेटली, 1/1। 1/sin30 दैट इज 1/2, मतलब ये 2/1 आया अल्टीमेटली। ये 1/sin, ये 1/cos60 यानी 1/1/2, एंड 1 का तो 1 ही है। अब देखो आगे, 1 -1 -1 1 है, यहाँ देखो 1 आया, 2/1 आया, 2/1 आया, एंड 1 आया। एक्चुअली 2 हो सकता है, 1 नीचे का वैल्यू नहीं है अपना, 1 तो रहता ही है। अब सॉल्व करो, 1 into 1 दैट इज 1। इसको यहाँ सॉल्व करो, कि आप लोग को पता नहीं कि बड़ा कैसे होता है यूट्यूब का, समझो यार, सीख लो, बता दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। इज इक्वल्स टू, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं हम। 1 into 1 that is 1 plus 1 into 2 that is 2। तो ये हो जाएगा -2, 1 into 2 that is 2, -1 into 1 that is -1, 1 into 1 that is -1, and 1 into 2 that is 2, 1 and 1 -1 into 2 is -2, 1 into 1 is +1। सॉल्व करो और आंसर मिलो, -1 1 1 -1। ये हो गया डायगोनल में आइडेंटिटी का नेगेटिव वाला। अब नाउ टाइम फॉर द सरप्राइज। सरप्राइज इज होमवर्क। अब देखो यार, सरप्राइज होमवर्क है तो ऐसा होमवर्क तो होगा नहीं। अब सुनो, सरप्राइज होमवर्क है क्या चीज, बता देंगे तुमको। ये हम अरिहंत का हम अप्लाई किए थे अपना क्लास 10 में, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो, वो अच्छा है। कोई भी ये प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हम अप्लाई किया था अपना, इसलिए बता रहे हैं। ये सही में अच्छा भी था, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रहता है अरिहंत में, अच्छा रहता है। सो ये एक ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसे टेबल हम दे देंगे, मैं चैनल पर अपलोड हो जाएगा एज अ पोस्ट और एज अ शॉर्ट। इसका आंसर चाहिए, दे दे रहे आंसर। 13 14 14 13। तो ये रियल होमवर्क वाला होमवर्क है, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में हम नहीं देंगे, पर आप चाहो तो आंसर हम देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आंसर तो दिया हुआ है यार, सॉल्यूशन दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो। अदरवाइज गूगल भी कर सकते हो, पर समझ नहीं आए तो हम बता देंगे ऑब्वियसली, आप अगर रीच करोगे तो बता देंगे। Please share this video to 1 topper, 1 average and 1 backbencher at least. So it must help every student, and please comment the name of each type of student in your class or section. Thank you.